सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोगों ने 2 लेक्चर देखनी है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि हाउ मैथ्स इज़ लाइक अ टूल इन फिज़िक्स विच विल मेक फिज़िक्स मोर क्वान्टिफाइबल एंड मोर मीनिंगफुल। मैथ्स की वजह से ही हम लोग फिज़िक्स में इतनी एडवांसमेंट कर पाए। वी कुड एबल टू डू lot of changes and lot of advancement in physics just because of mathematics only. So once we have done that, we have gone into elementary algebra. We have seen elementary algebra in the lecture number 1 and elementary trigonometry in lecture number 1. फिर lecture number 2 में हमने देखा था we have seen some conical section, we have seen quadratic equation, straight line, and we have seen majorly the coordinate system in the lecture number 2. सो लेक्चर नंबर 2 में एक क्वेश्चन पे हम लोगों को डाउट हो गया था, मेरे को डाउट हो गया था, तो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दिस डाउट. सो आई वाज हैविंग अ डाउट बिटवीन दिस ए and this a. So actually these both a are different. This is acceleration and this is coefficient in the parabola. So this both the a's are different. So that was a doubt I'm having. So I'm going to repeat this solution again. So मेरे को दिया गया है कि initial velocity u है और with an acceleration a से मैं पार्टिकल को पुश कर रहा हूँ. ठीक है, तो अब मेरे को वी एंड एस ग्राफ प्लॉट करना है. वी एंड एस ग्राफ प्लॉट करना है. तो आई नो द काइनेमेटिक्स इक्वेशन के हाउ द वेलोसिटी चेंजेस विद डिस्टेंस. इफ आई एम हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज माई इक्वेशन. अभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है ये. दिस विल आर गोइंग टू स्टडी इन काइनेमेटिक्स, बट स्टिल यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस इक्वेशन. तो यहाँ पे अब मेरे को v, दिस v एंड दिस s के बीच में आई नीड टू ड्रॉ a graph. So I know कि s और v में there is a parabolic और a quadratic relation है. So I know कि if I'm going to have the v and s graph like this, this is my v, this is my s, तो the graph will be open on the s side. ठीक है, the graph will be open on the s, the graph will be on the this side or this side. Then we will see कि वो किस side open up होगा in the coming section, but the graph will be like this only. Okay, now I'll try to convert this equation into the general equation of parabola, which is y minus k is equals to 4a x minus h. ये x, h और k जो है that we call a vertex of parabola. अगर parabola ये है, so this is what my h and k. h is my x coordinate and k is my y coordinate. सो अब मैं इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करूँगा. इस इक्वेशन में आई कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू दिस इक्वेशन. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई चेंज इट इनटू v माइनस यू का होल स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल्स टू आई टेक द 2a कॉमन ले लिया. तो ये इक्वेशन मेरी अब ब्रेक डाउन होकर हो गई s माइनस u बाई 2a का होल स्क्वायर. ये 2 माइनस इसलिए बिकॉज अल्टीमेटली मेरा प्लस है एंड आई नीड टू चेंज इट इनटू दिस इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा h कोऑर्डिनेट आ गया, दैट इज़ माई दिस h कोऑर्डिनेट, दैट इज़ माइनस यू स्क्वायर बाई 2a. ये मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया वर्टेक्स का, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 0. सो दिस इज़ माई कोऑर्डिनेट. ठीक है, और यहाँ पे मेरा इस इक्वेशन में दिस इज एन एक्सेलरेशन, दिस इज कमिंग आउट पॉजिटिव. So positive means कि on the right side it is going to get open up. If a is negative, then it is going to open up on the left side. So now I know कि ये मेरा vertex है, it is going to open up on this side. So I know कि v की value will always be positive. ठीक है, and this graph will start from here, not from here, because we have been given initial velocity of v is u. So v की velocity already u दे रखी है, it will not less than this, it is always this only. और velocity की direction में मेरी acceleration है, so it will keep on increasing in this direction only. So my graph will be like this only. So this will not be my graph will be like this only. This is my graph only. Okay, so I hope it is clear, that this question is clear. So now we'll move on to our third lecture, which is we are going to study calculus. And calculus में हम लोग majorly आज cover up करेंगे differentiation part. तो डिफ्रेंशिएशन का और कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिज़िक्स में, बिकॉज फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट स्टडी द नेचुरल फिनोमेना. और नेचर में हर चीज़ चेंज होती रहती है. नेचर में कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है. इफ़ यू सी एवरीथिंग इज़ चेंजिंग. इफ़ यू सी द प्लांट्स, इट इज़ चेंजिंग. इफ़ यू सी द मूवमेंट ऑफ सन, इट इज़ चेंजिंग. इफ़ यू सी द अर्थ इज़ ऑल्सो मूविंग, इट इज़ चेंजिंग. इफ़ यू सी योर बॉडी ऑल्सो, इट इज़ चेंजिंग ईच एंड एवरी मोमेंट. इफ़ यू सी द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
and after some time if you see the object position, it's got changed. So everything in the nature is changing. So to see that change, we need calculus, and to see that change on a minute level we need calculus. Suppose I know कि सपोज यू आर यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन आप लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन में यू नो कि योर बैटरी गोज़ डाउन लाइक दिस, इट स्टार्ट विद 100% एंड इट गोज़ डाउन टू 0%. सपोज इट स्टार्ट विद t इज इक्वल टू 0 और 10 घंटे में t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 10 घंटे में बैटरी आपकी 100% से 0% हो गई. तो यहाँ पे ओवरऑल यू हैव सीन कि बैटरी किस तरीके से कम हो रही है कि पर आवर माई बैटरी इज़ रिड्यूसिंग 10%. दिस इज़ एन एवरेज, ठीक है. ये आपने एक मोटा मोटा आइडिया लग गया आपको, पर आवर आपकी 100% हो रही है. बट इज इट द एक्चुअल केस? वी नो कि बैटरी शुरू में इट गोज डाउन स्लोली एंड इट ऑल ऑफ अ सडन इट गोज डाउन टू 0. ओके, सो दैट रेट कि हाउ इट इज़ चेंजिंग एट ईच एंड एवरी मोमेंट, ठीक है. ओवरऑल मुझे पता लग गया, ये ओवरऑल रेट पता लग गया 10% एवरी आवर. बट आई नीड टू नो कि इस मोमेंट पे कितना चेंज आ रहा है, इस मोमेंट पे कितना चेंज आ रहा है, इस मोमेंट पे कितना चेंज आ रहा है, इस मोमेंट पे कितना चेंज आ रहा है. सो फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट इफ आई वांटेड टू सी द चेंज, हाउ दैट चेंज इज हैपनिंग, देन आई नीड अ कैलकुलस. आई नीड कैलकुलस फॉर दैट. फॉर टू जूम इन टू एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट आई नीड कैलकुलस फॉर दैट. ओके, कि हर मोमेंट पे कितना चेंज हो रहा है, आई नीड कैलकुलस फॉर दैट. सो सेम वे सपोज कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग 10 करोड़ इन 5 years. सो पर ईयर इफ़ यू टेक मोटा मोटा कि 2 करोड़ पॉपुलेशन ग्रो कर रही है. बट इज़ इट द केस? मे बी एक साल में उसकी पॉपुलेशन 3 करोड़ बढ़ी हो, एक साल में 1 करोड़ बढ़ी हो. तो दैट रेट इज़ वेरिंग, दैट रेट is not constant, that rate is varying, but we just see the initial value and the final value to see. But that rate which is that zoom in करके जो हर एक मोमेंट पे अगर मेरे को चेक करना है कि इस मोमेंट पे मेरी रेट ऑफ चेंज क्या है पॉपुलेशन का, इस मोमेंट पे मेरा रेट ऑफ चेंज क्या है पॉपुलेशन का, टू सी दैट रेट ऑफ चेंज एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट आई नीड कैलकुलस फॉर दैट, बिकॉज आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन the complete timeline into small segments, और small segment में then I'm going to see the change. और now जब मेरे को ये चेंज पता लग गया, तो स्मॉल मोमेंट के लिए मेरे को चेंज पता लग गया. मैं स्मॉल मोमेंट के इस चेंज को आई कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग. सपोज यहाँ पे मेरा चेंज है एंड इस चेंज की वजह से इस साल में ये पॉपुलेशन हुई. सो आई take this, now I take this is my change in this year, so I take this. So I keep on accumulating this small change and I'll get the overall value के overall population कितना change हुआ है. So first when we talk about when we zoom into to see the rate of the change, that is what we are talking about, the differentiation. And when we keep on accumulating that small change, then we are talking about the integration. Right? So calculus is the language of change. In order to understand the change, how the things are changing at a particular instant, at a small interval of time, we need calculus for that. Okay, rather than over a larger time, if we have to zoom into a smaller time, we need a calculus for that. So same I have explained it here. So between A and B, how much change happened when a very small infinitesimally small amount of time we have taken. We have seen the change happen between this. I know the change happened between this and this. It is quite visible to me. But to see the small at a very minute level, change as a very minute level, I go deep into the calculus. ठीक है, and how the small changes started accumulating, it is going to give you the overall integration के हर change पे कैसे कैसे accumulate हो रहा है in the time and space. That is like an integration only. So differentiation and integration में our basic thing is function. Okay, because I am all my things in physics is related. One thing is related with another thing. So suppose y is related with some function of x. So I want to see अगर मैं x में थोड़ा बहुत चेंज करूँ तो मेरे y में कैसे चेंज आएगा. So that also depend कि वो फंक्शन क्या है. ठीक है, so function is nothing but कि आप अगर x यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, ये आपका फंक्शन है. फंक्शन कैन बी quadratic function, का फंक्शन कैन बी लीनियर फंक्शन, का फंक्शन कैन बी trigonometric function, any function can be sin x, function can be x square plus 5. So quadratic or trigonometric function can be any function. So यहाँ पे मेरा y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है after I am putting this x, that is what the function is, transforming the input into output. That is what the function is doing. ठीक है, that is what the function is doing. Now why we need the function? Because we have to see the minute changes in x, how it is reflecting in y. That small changes in x, how it is reflecting in y.
that is what we are going to see. Okay, so that is what where the function is being used for. So two more important functions are there. One is exponential function and one is log function. So exponential function का पर्पस होता है कि किसी स्मॉल वैल्यू को, स्मॉल इनपुट को लार्ज आउटपुट में कन्वर्ट करना, और लॉग का पर्पस होता है अगर मेरा बहुत लार्ज आउटपुट है उसको स्मॉल, लार्ज इनपुट है उसको स्मॉल इनपुट में कन्वर्ट करना। ठीक है, दैट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉग मतलब एक होता है कि अगर मेरी मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ आर लाइंग बिटवीन 0 and 1 और ऑल ऑफ अ सडन एक वैल्यू मेरी 1 लाख, एक वैल्यू 1 लाख लाई कर रही है, सो इट इज़ काइंड ऑफ ए आउटलायर। सो ब्रिंग दिस 1 लाख नियर टू दिस वैल्यू। ठीक है, सो आई नीड अ लॉग फंक्शन इन द ग्राफ, इन टू शो इट इन अ ग्राफिकल मैनर, सो आई नीड अ लॉग फंक्शन फॉर दैट। ठीक है, बिकॉज लॉग फंक्शन करूँगा तो 1 लाख की वैल्यू कितने आ जाएगी, 6, 10⁻6, सो 6 log 10 is 6, सो ये वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी, विद इन 0 और 10 के बीच में आ जाएगी। ठीक है, सो दैट्स वाई अगर मेरा लार्ज इनपुट है उसको मेरे को स्मॉल इनपुट में कन्वर्ट करना है, आई कन्वर्ट दैट इनटू, आई यूज़ द लॉग फंक्शन। और अगर मेरा स्मॉल इनपुट है और उसको मेरे को एम्पलीफाई करना लार्ज इनपुट में, आई यूज़ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, सो जस्ट टू गिव यू ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, बाकी लॉग और EX देखेंगे हम लोग इसमें, इन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन कैसे होता है उनका, विल सी इट इन द कमिंग लेक्चर, राइट। सो नेक्स्ट विल मूव ऑन टू डिफरेंशिएशन। एज वी हैव सीन, डिफरेंशिएशन is the study of variation and change, and the change which is happening at a, we are at a zoom in level. So suppose this is my curve, I know the change happened from here to here is this much, this is my delta y got changed when I move from delta t, ठीक है, और delta s got changed when I move from delta t. But if I wanted to see के इस इंस्टेंट पे कितना चेंज आया है, इस स्मॉल इंस्टेंट पे कितना चेंज आया है, बिकॉज यहाँ पे रेट कुछ और है चेंज होने का, यहाँ पे कुछ और रेट है चेंज होने का, यहाँ पे कुछ और है रेट चेंज होने का, बिकॉज एवरी मोमेंट द रेट चेंज होने का रेट बदल रहा है। ठीक है, तो मैं एक इंस्टेंट पे लेके अगर करूँ कि मेरे इस इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ चेंज होगा बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब मैं इस इंस्टेंट पे अगर रेट ऑफ चेंज देखूँ, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ इंटीग्रेशन, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ इंटीग्रेशन, ओ सॉरी दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ डिफरेंशिएशन। अगर मैं रेट इस छोटे से इंस्टेंट पे देखूँ, सो दिस इज़ माई डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन अभी हम और डिटेल में देखेंगे, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट, दैट वी हैव टू कवर अप, बिकॉज लिमिट इज़ द बेडरॉक ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑन दिस इट इज़ बेसिंग ऑन, बिकॉज डिफरेंशिएशन इज़ टू ब्रेक डाउन द फंक्शन इनटू वेरी स्मॉल वैल्यूज़, वेरी स्मॉल माइन्यूट लेवल। सो दिस डिफरेंस जो होगा ना, जैसे यहाँ पे डिफरेंस T1 से T2 के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, अगर आपको चेंज देखना है, आपने चेंज देखा T3 से T4 के बीच में और कम कर दिया, बट मेरा जो मैं डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूँ और जो मैं चेंज देखना चाह रहा हूँ, दैट इज़ T1 से T5, ये यहाँ पे T5 से, दैट इज़ जस्ट दिस मच, एंड दिस T5 प्लस डेल्टा T, और ये डेल्टा T की वैल्यू शुड बी अप्रोचिंग टू 0। So what is this approaching to 0? ये approaching to 0 है क्या? Because it is not equal to 0, but it is approaching to 0. You can say 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Like that, it is approaching to 0. So it is not 0, it is approaching to 0, and that is what is required in the differentiation. कि मैं उस बहुत ही minute level के पे changes देख रहा हूँ मैं। ठीक है, इस minute level पे I've seen how the function got changed, how the rate of the change of that function. So उसके लिए मेरे को इस minute level का ये चीज़ देखनी पड़ेगी. What is this? At delta t tends to 0, what is this tends to meaning? So that is what we call a limit. This is a limit. Okay. Okay, we don't know the exact value, so if मैं करूँ delta t is equal to 0, I don't, the exact value इन दोनों की सेम ही होगी। अगर मैं T5 प्लस डेल्टा टी ले लूँ और डेल्टा टी को 0 रख लूँ, इट विल बी ऑलमोस्ट 0। सो अगर मैं डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 कर दूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट वैल्यू, दैट इज़ T5 प्लस 0.00000001। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इतने माइन्यूट टाइम डिफरेंस पे कितना रेट ऑफ चेंज आया मेरे फंक्शन पे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हाउ विल सी द डिफरेंशिएशन, बट फॉर दैट आई नीड टू सी दैट लिमिट। वो लिमिट देखनी है कि वो टेंड्स टू 0 क्या होता है। टेंड्स टू 0 का मतलब होता है कि उस एट पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, बट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, द फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आरंट अवेलेबल एंड नॉट एग्जैक्ट एट दिस पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को उस पॉइंट पे लिमिट चाहिए, सो इसका मतलब ये हो गया एंड देन ये हो गया। ठीक है, सो इस पॉइंट पे द फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस, इस पॉइंट पे फंक्शन ओपन है।
ठीक है। तो इस पॉइंट पे सपोज ये मैं लेता हूँ x इक्वल टू 2, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, बट इफ़ आई अप्रोच इट फ्रॉम दिस साइड, इफ़ आई अप्रोच इट फ्रॉम दिस साइड और इफ़ आई अप्रोच इट फ्रॉम दिस साइड, तो इसके बहुत ही नियर पे वैल्यू कंटिन्यूड है, वैल्यू द फंक्शन इज कंटिन्यूस और फंक्शन की वैल्यू है, बट इट दिस पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज what we said a discontinued function, or there is no value of the function, but when we approach or tend to that particular point, we got the value of that, so that is what we call a limit, ठीक है। सो इस लिमिट के ऊपर दो एक बहुत अच्छे स्टोरीज हैं। वन इज के हाफ वे फर्स्ट। सो हाफ वे फर्स्ट का मतलब है कि सपोज यू हैव टू कवर अप द डिस्टेंस हाफ, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हाफ वे में कवर अप करना है। तो पहला हाफ आपने कवर अप कर लिया, फिर सेकंड हाफ आपने यहाँ पे कर लिया, थर्ड हाफ उसका हाफ कर लिया, फोर्थ हाफ उसका हाफ कर लिया, और हाफ करते बट यू विल नेवर रीच जीरो, यू विल ऑलवेज रीच अ स्मॉलर नंबर, बट यू विल नेवर रीच जीरो, ठीक है। अगेन कि पहला आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आपने हाफ ट्रैवल कर लिया, अब उसका हाफ, इन दोनों का हाफ आपने यहाँ तक ट्रैवल कर लिया, अब इन दोनों का हाफ आपने यहाँ तक ट्रैवल कर लिया, अब इन दोनों का हाफ आपने, सो हाफ करते यू आर रीचिंग द इनफाइनाइट वैल्यू विच इज टेंडिंग टू जीरो, बट इट इज़ नॉट जीरो। Okay, that is where we use the limit. Second thing is the Achilles and the tortoise paradox. That is a Xeno's paradox. A Greek philosopher was there, Xeno. So he has presented a paradox. तो उसमें क्या होता है ना, Achilles होते हैं, Achilles you would have seen in the movie Troy and all. The same, there's a good adage also going on, Achilles heel. So same Achilles were there. So Achilles was a strong warrior. तो क्या होता है कि he has presented a paradox कि Achilles was the fastest and the strongest warrior. They could not able to catch the paradox. और वो कैसे present किया था? Suppose Achilles, suppose this is my tortoise and this is my Achilles. So यहाँ पे इन दोनों में पहले ऑलरेडी tortoise को एडवांटेज 10 मीटर की है, और Achilles चलता है 10 मीटर पर सेकेंड से, और tortoise चलता है 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। सो जब Achilles यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, दैट इज़ जब Achilles यहाँ से यहाँ पे पहुँचा इन 1 सेकेंड, टॉर्टोइज ने 1 मीटर और आगे हो गया होगा, टॉर्टोइज विल मूव हेयर 1 मीटर आगे हो गया ना 1 सेकेंड में। अब जब Achilles यहाँ से 1 मीटर कवर अप कर लेगा, टॉर्टोइज फिर 0.1 मीटर आगे हो जाएगा, ठीक है। फिर Achilles जब 0.1 मीटर चलेगा तो टॉर्टोइज 0.01 मीटर आगे हो जाएगा, ठीक है। फिर जब Achilles 0.01 मीटर चलेगा तो टॉर्टोइज 0.001 मीटर आगे हो जाएगा। सो इन दिस वे इट इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज गोइंग ऑन, एंड Xeno has presented a paradox के Achilles could not able to catch the tortoise. Okay, so that paradox has been resolved with the Planck's length. So that is in the modern calculus we could able to see कि infinite steps से भी we could able to reach the final result. Finite result आ जाता है with the infinite steps. We have seen in the infinite GP series also. So infinite से we could able to get the finite number that we have seen in the modern calculus. ठीक है, these are the way के when it is never zero, वो इससे शो कर रहा है it will never going to catch, बट इट इज़ ऑलमोस्ट कैचिंग। जब वैल्यू 0.0000001 हो जाएगी, इट इज़ ऑलमोस्ट के उसने पकड़ लिया, बट इन द नंबर टर्म्स इट इज़ कमिंग के अभी भी उसका वैल्यू इट इज़ नॉट जीरो, इट इज़ जस्ट टेंडिंग टू जीरो। सेम वे अगर आप हाफ वे में चलते जाएंगे, यू विल नेवर रीच द फाइनल डेस्टिनेशन, यू विल ऑलवेज बी हाफ दैट। Okay, these are the two paradoxes which will further elaborate the concept of limit. Okay, so next we'll move on to some more on limits. So as we have discussed कि limit एक ऐसे फंक्शन है, यहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूड हो गया एट एक्स। सपोज दिस इज़ माई फंक्शन, अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 डाल दूँ यहाँ पे, 2 की वैल्यू ये वाई इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ कमिंग एज एन इन्फिनिटी, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट 2, बट इफ़ आई पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 1.999 और एक्स की वैल्यू 2.001, बट इट एट दिस पोजिशन द फंक्शन इज डिफाइंड, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. Okay, I'll get the value of x, but at particular 2 it is not x. So if I go from here, from the left side or from the right side, the function is defined, I could able to define. So it is a tend to means it is tending to 2. It is not exactly 2 because at 2 it is not defined, but it is tending to 2. It is very, very, very close to 2. It is very, very close to 2, and that is what we need in differentiation. We need the thing which is very, very close to delta x. ठीक है, delta x is very, very close to 0, कि वो चेंज इतना स्मॉल है, इतना इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है कि आई विल जस्ट पुट इट एज अ 0. ओके, सो दैट इज़ वाई लिमिट इज़ बिन यूज्ड फॉर आवर differentiation. So limit is a bedrock for our differentiation. So that's why we have given a brief discussion on the limits.
So here differentiation is built upon limits. So instantaneous change, if I need to see, say if I need to see from this point to this point, so take it very small. So this point to this point is infinitesimally small. So यहाँ से यहाँ पे कितना change आ रहा है, that is कि t plus delta t, और यहाँ पे जो delta t है that is approaching to 0, that is very near. So this is what we got it from the differentiation. Differentiation with limit, it is giving us right now. Okay, so at this instant, so t plus delta t, अगर delta t it's 10 to 0 हो जाएगा, तो it is not t but it is just बहुत ही minutely greater than t है, which is just defining the instant कि अभी के टाइम पे ये वैल्यू है. ठीक है. So differentiation is based on limits, and differentiation it is going to define the instantaneous change or giving me the value right now. Same way like here, यहाँ पे वैल्यू मेरे को पता करनी है. यहाँ पे वैल्यू पता करने के लिए मैंने क्या किया, इसको स्मॉल चेंज देखा यहाँ से यहाँ के बीच में, और ये स्मॉल चेंज को मैंने डेल्टा टी को 10 to 0 कर लिया, एंड इट इज़ गोइंग टू गिव मी द राइट नाउ चेंज. अभी के टाइम पे जो चेंज हो रहा है दैट इज़ गोइंग टू गिव मी, okay, with the help of limits only. So that's why the limit is the bedrock of differentiation, and that's why we have taken a brief of limits, and we have seen the two good examples on the limit is the eclipse and tortoise and the halfway first. Okay, so now we'll see the derivative of a function. अगर कोई function है तो if we derivative का मतलब ये मान के चलो we are zooming into that function. ठीक है, अगर ये फंक्शन इतना बड़ा ऐसे दे रखा है तो वी आर जूमिंग इनटू दिस सेक्शन, और इसको बड़ा करके और उसके अंदर के चेंजेस देख रहे हैं बस हम. ठीक है, ये मतलब होता है डिफरेंशिएशन का. ठीक है, सो जूमिंग इनटू द फंक्शन के उसमें कितना चेंज हो रहा है. सो नाउ विल सी मैथमेटिकली हाउ द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज देयर. सो सपोज वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. नाउ आई विल चेंज इनपुट एक्स, थोड़ा सा चेंज करूँगा मैं एक्स में, and how the y got affected in the output that we are going to see. Suppose I do a change in x delta x, ठीक है, यहाँ पे delta x, and small change in y is delta y. If I do this equation minus this equation and I divide this by delta x, I'll get this. So delta y by delta x is equals to this equation minus this, and I'll divide by delta x. So this is what I got it as a rate of change. So this is this only. So this is my delta x, this is my x. यहाँ से मैं x से मैं I move into this is my delta x, x से x में delta x में, and I see my this value is my delta y. So change in delta x, how it is affecting in your function delta y. So that is what is the difference. That is what we got a average rate of change. यहाँ से यहाँ का एवरेज रेट ऑफ चेंज. नाउ आई वांटेड टू सी द इंस्टेंट कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट रेट ऑफ चेंज क्या है. उसके लिए देन अगेन आई गो टू द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स, आई गो बैक टू द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स. सो नाउ दिस इज माई इक्वेशन. सो नाउ यहाँ पे मैं डेल्टा एक्स को आई पुट इट 0, डेल्टा एक्स को वेरी क्लोज टू दिस डेल्टा एक्स, आई एम पुटिंग इट very close to 0. It is, I am bringing this very much close to this. This is almost approaching this point only. So now delta x by x, so delta x is 0. I can say it is a differentiation of y with x, and limit delta x is 0, and this is my function. So this is giving me the instantaneous rate of change. It is giving me the instantaneous, and this function is giving me the average rate of change, and this function is giving me the instantaneous. When I put delta x approaching towards 0, very close to 0, this function is giving me instantaneous. That means right now what is the change is happening in this function. Okay, so in graphical, how we are going to see the right now change. So this is my function. So suppose I want to see the change between a to b में मेरा change कितना है. This is my delta y, ये delta y change आया when I move from delta x to x, delta x. अब मैं ये delta x छोटा करता जाऊँगा. I keep on changing the delta x. पहले मेरा delta x ये था, now I'll change the delta x from here to here. ठीक है, तो that means this is, if I change it from here to here, this is my delta y and this is my delta x. So I keep on bringing this x very closer to this, very closer to this. When I get it very closer to this, that means delta x is almost tending to 0. That is almost approaching 0. That is delta x is very close to this number, and when it's got close to this number, so when it got very close to this point, so I've got this point, and this
this will become a tangent. Okay, so right now it is a secant from A to B. This is my delta y. So now if I keep on decreasing, so suppose now this is my delta x, so this is my delta y, now this is my delta x, this is my delta y. So I keep on increasing. At one point of a time I reach a point which is very close to x, and here if I draw a line, this is dy by dx line. This is going to give me the tangent at that point. So dy by dx is the rate of change at this particular point at that instant. So at any point if I draw a tangent, it is going to give me the rate of change at that particular point at that instant. So यहाँ पे rate of change ये है, यहाँ पे धीरे धीरे rate of change increase हो रहा है because it is going from negative to positive and it is keep on increasing. Rate of change का मतलब है कि x अगर मैं horizontal move कितना कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा vertical move हो रहा है, ठीक है, that is what my slope. So x अगर मेरा x इतना मूव करके y इतना मूव कर रहा हूँ, तो that means it is having a very less slope. So change in delta y is very small when the delta x changes very big. So that is a low slope. If I do a small change in x and I've got a very high change in y, that is it is having very high slope. The theta is very high or the dy by dx function is very high, very high function. ठीक है, so it is giving me the tangent dy by dx. यहाँ पे we are getting this slope is decreasing and then it started increasing. It is decreasing and then it started increasing. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये slope है, यहाँ पे देखूँ तो it is almost getting 0, यहाँ पे फिर it is going to increase on the positive side. ठीक है, so that's how कि किसी particular instant पे if I need to know the rate of change at a particular instant, I bring this delta x, change in delta x almost tends to 0. When I bring this delta x tends to 0, it will bring from here to up to this point, which is almost near to this, which is almost overlapping this point, and when I draw this line, it is a tangent to that point. It is going to give me dy by dx. ये मेरा dy by dx differentiation दे रहा है. So उस particular instant पे क्या rate of change है, that is it's this tangent is giving it to me. Okay, so that instantaneous or right now rate of change is very much important in our kinematics and all that we are going to see in the future lectures, but it is just to give you a brief understanding how the differentiation is been applied here in the graphs and all. Okay, so it's the same one. So slope of AB is my secant. Okay, that is what the average slope dy by dx. Now I keep on decreasing the value of delta x. Now secant will become, if I keep on decreasing this is delta x, if I keep on decreasing this value, it will become tangent. When delta x tends to 0, I've got dy by dx, that is instantaneous right now. So from here to here, I've started zooming in. I just zoom into this level, and it gave me this instantaneous. Zoom into this level to see how fast my curve is changing at this particular moment. Okay, so that is zooming, how fast the changing is happening at A. Right, so this is a derivative of a function. So now I move on to the application of application of differentiation that I have told you. We will be using it quite often in kinematics, but we'll just give a brief understanding कि कैसे यूज़ होता है. तो suppose you have been traveling from A to B. Suppose you have been traveling from A to B. ठीक है, यहाँ पे you start from time is equal to 0 and your position is 0. Then you after 10 hours you have covered 100 kilometer of distance. Okay, so now if you see what is your velocity, you take total distance covered is 100, total time is 10, and you say okay 10 kilometer per hour. So it is just giving you the big change, बड़ा मोटा चेंज दे रहा है कि A से B के बीच में मेरा ये चेंज है. तो इसके अकॉर्डिंग मतलब कि हर घंटे मेरा 10 किलोमीटर का चेंज हो रहा है. ठीक है, 10 किलोमीटर मेरा बढ़ रहा है हर घंटे. सो इसने मोटा रेट ऑफ चेंज दे दिया, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू डिफाइन द मोशन, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर. ओके, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे 10 नहीं थी, यहाँ पे 10 किलोमीटर नहीं है. स्टार्टेड ये धीरे धीरे स्पीड अप किया. यहाँ पे मे बी हिज वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 25 and then it came down to 0 and he made a stop here at C, and then he started back again and started increasing in speed, and then he again take a break at C, if D, then he started moving, then he again increase and then go back to C. So like that there's a
increase and decrease in the velocity. It is not like his velocity is almost 110 each and every moment. So this 10 is not giving you the exact motion. It is not elaborating the exact motion कि क्या चल रहा है वो A to B के बीच में. It is just giving you कि भाई 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बढ़ रहा है. That is not giving you the exact thing. So इंस्टेंटेनियस क्या करता है ना, इट इज़ गोइंग टू गिव यू, अगर मैं यहाँ पे निकालूँ इंस्टेंटेनियस, ठीक है, एट दिस सी, सो इंस्टेंटेनियस विल गिव यू ओके ही इज मेड ए स्टॉप हेयर, सो वेलोसिटी जीरो. सो यहाँ पे इसका यहाँ पे कर्व में ऐसे आ जाएगा, तो दैट इज वेलोसिटी जीरो. सो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे जीरो आ जाएगा, सो दैट मीन्स वेलोसिटी इज जीरो. So same way I could able to see okay, how the velocity has been changing and how the velocity has been changing between A to D. बढ़ रही है, कम हो रही है, 10 चल रही है, या तो velocity can be anything in between. ठीक है. So it will give you a exact picture of the motion कि उसमें मोशन में continuously क्या हो रहा है, हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है. तो instantaneous is going to define the zoom in of the motion कि हर मोमेंट पे यू could able to see कि वहाँ पे कितनी स्पीड है, कितनी एक्सेलरेशन है, किस तरीके से मूव कर रहा है, रेस्ट पे है. At every moment you could able to see. ठीक है. So another example of this is कि suppose you started from A and you move here and you come back here, you come back again at the same position. So यहाँ पे अगर मेरे को velocity average की निकालनी है, velocity average क्या होता है कि how much is the displacement, पोजीशन में कितना चेंज आया डिवाइड बाय पोजीशन में चेंज कितना है, जीरो, एंड टाइम कितना हो गया, उसमें 10 घंटे लगे, एंड द टोटल टाइम, एंड on this basis I will say कि average velocity is zero. So that is not the right thing. That is not defining the motion, because I know कि movement happen, velocity got zero also, velocity decrease also, then velocity started increasing also this side. So a lot of things happen in the motion. velocity decrease भी कर रही है, increase भी कर रही है, decrease high rate से कर रही है, increase low rate से. So many factors are there, but it is just taking average velocity zero, so it is not giving you the exact picture of motion. So to get an exact picture of motion you need instantaneous velocity and instantaneous acceleration. Right now zoom in करके मेरे को बताओ इस मोमेंट पे कितनी उसकी acceleration है, कितना उसका velocity है. So that is what we got it from the instant. So same way, so motion from A to B, maybe he stopped between C to D, that is not accounted in this. There were traffic lights also where his speeds got zero, then he again started accelerating, increased the speed, so that also not accounted here. So sometimes he did a stretch of 5 km per hour, sometime 25, sometimes, so that also not been accumulated with this V average. But instantaneous will give you all this. So instantaneous, you put the point, you zoom into it and you see कि उस point पे क्या मेरी velocity है. Instantaneous will give you each and everything right now. So again, as we know कि velocity is the change in position over change in time. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं change in time को change in velocity is change in position over change in time. This is my delta t, this is my change in position. अगर मैं इस delta t को I keep on decreasing this delta t, if I keep on decreasing this delta t and I bring it very much near, so I bring it delta t is almost tends to 0, then I'll get the instantaneous dy by dt. Okay, from average to instantaneous I have got it. So from the larger thing I zoom into smaller thing and I check at this particular instant what is the value. Okay, so that is the idea behind the instantaneous, right? So instantaneous means you check the speedometer. So speedometer, whatever the speedometer is giving you the reading, that is your instantaneous velocity. Then you are having the falling object. At falling object, if you take a snapshot, so at that particular time, what is the speed, what is the acceleration, that is at every moment it is changing. So if you take a snapshot at that particular moment, it is going to give you the velocity at that particular moment only. So that is the advantage of having the instantaneous rather than looking the motion with the average. And we have seen on the curve, if I wanted to see at a particular point what is my velocity, I just have to draw the tangent on that. So that is going to give me the average velocity. But tangent means velocity वो तब देगा जब graph is my xt graph, because dx by dt is my velocity. Change in position, small change in position with the small change in time is giving me the small change in velocity, so dv, that is what I'm getting it. Okay, so this अगर मेरा xt graph है, then slope of the curve is going to give me the velocity. Okay, so same here,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई, डेल्टा टी टाइम पीरियड पे मैंने चेक किया, दिस इज़ माई डेल्टा एक्सचेंज, नाउ आई कीप ऑन reducing this delta t to tending to 0 and I'll get this slope, and this is my this slope is giving me v instantaneous velocity. Okay, so that's how we got instantaneous velocity and acceleration, right? So now we will see in differentiation what are the properties of differentiation, and we'll see some differentiation of certain functions which we are going to use in coming lectures. जितने भी हमारे फिजिक्स के होंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि वो पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन इट्स बीन यूज्ड इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग. So we'll see those functions. Okay, so we'll see the properties and we'll see those functions. So here I'm having this y is equals to 2x. Here this is my constant. Okay, so when I do a differentiation, so I take the constant out and I do the differentiation only this number. Okay, so that is one property कि constant मेरा बाहर आ जाता है and I do a differentiation of only that number which is varying. So 2 I have taken it out and I have done a differentiation of x only. Then same way अगर मेरा function ऐसे दे रखा है 2x plus 3x square, so same way this is, I'll take this 2 out and I'll do the differentiation of this, plus I'll take 3 this out and I do the differentiation of x square. That is what I have done, dy by dx. 2 I have taken it out, then I have done the differentiation of x. 3 I have taken it out and I have done the differentiation of x square. ठीक है. Then if I am having the power function को कैसे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, पावर फंक्शन का मतलब है एक्स रेज टू पावर 1, एक्स रेज टू पावर 2, एक्स रेज टू पावर -1/2, एक्स रेज टू पावर 1/2. सो दीज आर ऑल द पावर फंक्शन. सो दिस फंक्शन जब भी ये फंक्शन है तो उन फंक्शंस में हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दैट वी आर गोइंग टू सी. सपोज मेरा जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n. ठीक है, एक्स रेज टू पावर n फंक्शन है, n कैन बी 2, n कैन बी -1/2. विल सी ऑल द केसेस. तो इसमें क्या होता है ना, आई विल टेक दिस n डाउन. सो द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज n एक्स रेज टू पावर n-1. सो इसका हो गया n में नीचे ले आया, एक्स रेज टू पावर n में से मैंने 1 माइनस कर दिया. दिस इज माई डिफरेंशिएशन. सो अब मैं n की वैल्यू सपोज मेरा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, 2 को पहले मैं नीचे लेके आया, 2 एक्स रेज टू पावर 2-1, सो 2x. सो दिस इज माई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर. सपोज आई वॉन्ट टू डू द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2, एक्स रेज टू पावर -1/2. इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, मैं -1/2 पहले नीचे लेके आऊँगा, एक्स रेज टू पावर -1/2 -1. Okay, so now it is -1/2 x raised to power -3/2, right? This is my differentiation. So that's how we are doing. Now I want to see the differentiation of root x. Root x is what? X raised to power 1/2. Now 1/2 को मैं नीचे लेके आया, x raised to power 1/2 -1. So this will give me 1/2 1/root x. Okay, so that's how any power function we do the differentiation, right? So x raised to power n-1. So that's how we are doing the differentiation of any power function. So one more power function is 1/x square. अगर मेरे को दे रखा है तो x स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊँगा, x raised to power -2. अगेन -2 को अब मैं डिफरेंशिएट करूँगा, -2 x raised to power -3. So -3 को मैं नीचे ले आया यहाँ पे. So this will be my differentiation. This will be my differentiation of x raised to power 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन. ओके, सो सेम वे यहाँ पे जो फंक्शंस हैं, दीज आर माई y इज रिलेटेड विद x, द फंक्शन इज डायरेक्टली पॉलिनोमियल ओनली. नाउ आई विल मूव टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अगर मेरा कोई है कि हाउ x इज वेरिंग व्हेन आई हैव द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो व्हेन आई हैव द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सपोज आई हैव टू डिफरेंशिएट sin x. सो sin x का डिफरेंशिएशन होता है इट इज़ cos x. sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, एंड cos x का वी आर नॉट गोइंग इनटू द derivation of it, so that is not required for us because we need maths just for the problem solving. But if you are studying maths, then obviously you need to know the derivation of differentiation of sin x, how we are reaching this cos x. ठीक है, लेकिन अभी for this purpose, for solving physics for solving physics question based on physics application, so we don't need to understand the derivation of this. So we just look into it. So d sin x by dx क्या होता है मेरा, cos x. ठीक है, और d डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज बाय -sin x. ठीक है,
साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स. नेक्स्ट इज इफ आई हैव टू डू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट. सो अगर मेरे को किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करना है, सो दैट इज जीरो. कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट, अगर एक कांस्टेंट फंक्शन है, दिस इज माय कांस्टेंट फंक्शन, इफ आई एम गोइंग टू डिफ्रेंशिएट इट, इट इज जीरो. अगर मेरा साइन एक्स का फंक्शन है, चलो देखते हैं. साइन एक्स का फंक्शन है, इफ आई एम डिफ्रेंशिएटिंग इट, दिस इज पाई बाई टू, सॉरी दिस इज पाई बाई टू, दिस इज पाई. सो इट इज the differentiation is what, the tangent to the curve. so that differentiation, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है स्लोप की, धीरे धीरे स्लोप डिक्रीज कर रहा है, जीरो हो रहा है, और फिर धीरे धीरे अपोजिट साइड में इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. एंड व्हाट इट इज शोइंग कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे मैक्सिमम है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते करते अपोजिट साइड में इंक्रीज कर रहा है. सो दैट इज व्हाट इज शोइंग कॉस फंक्शन ग्राफ. कॉस फंक्शन दिखा रहा है. अगर इसको डिफरेंशिएट करूँ, इट इज गोइंग टू गिव मी द कॉस फंक्शन ग्राफ. सेम वे कॉस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा, इफ आई विल सी द स्लोप, यू विल गेट द tan फंक्शन ग्राफ. बट हेयर इफ यू सी, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सो dy बाई dx, अगर मैं dx को स्मॉल भी कर दूँ, इट इज सेम नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, सो इट इज जीरो. ओके. सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज जीरो. सो इफ आई डू द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, इट इज sec स्क्वायर x. तो ये sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन वी आर गोइंग टू यूज, और डिफरेंशिएशन वी आर गोइंग टू यूज इन deriving some electric fields and all in our electrostatics part, so that you just keep in mind. So y is equals to tan x का differentiation क्या होगा, sec square x. Next is, we have seen two function earlier, e raised to power x and log x. This is what we call log of ex, ln x. So here मैंने बताया कि वाई वी यूज़ ई एक्स एंड ई रेस्ट टू पावर एक्स एंड लॉग एक्स. लॉग ई रेस्ट टू पावर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं व्हेन एवर आई एम हैविंग अ वेरी स्मॉल इनपुट टू कन्वर्ट इनटू लार्ज आउटपुट, देन आई यूज़ दिस ई रेस्ट टू पावर एक्स फंक्शन. बट अगर मेरे बहुत लार्ज आउटपुट्स हैं, इफ आई एम हैविंग द आउटपुट्स इन मिलियन, सपोज आई एम हैविंग 90% ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन हंड्रेड्स, ओके, and or 98% of the observation in hundreds and 2% of the observation in crores. Okay, so कितना differences आ जाएगा. I could not able to plot it on the graph. कि अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करने जाऊँ तो मेरा ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा. मोस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बी लाइंग हेयर ओनली, एंड एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जो कि एक्स रेज टू पावर जो 1 करोड़ पे है, ये वाली वैल्यू. तो द ग्राफ डज नॉट मेक ए सेंस. To bring it into the sense, तो larger value को, this value को I'll scale it down and it will come up here. So it is quite comparable. We could able to compare. So that's why the log function has been used. So log function is कि अगर मेरा large input है to convert into small output. That is why we use a log function. ठीक है. So ये हो गया ऐसे log function, large इनपुट, यहाँ से स्मॉल आउटपुट. लार्ज इनपुट सपोज मैंने 10 रेज़ टू पावर 5 दे दिया, आउटपुट मेरा आ गया 5 अगर मेरा log 10 फंक्शन है. ठीक है. दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गेट इट. ओके, दैट्स हाउ द log and the e raised to power x function is being used. So this has been used in radioactive decay. We are going to use it in population explosion, radioactive mostly in modern physics we are going to use it, and in decay in current RC circuits and all, वहाँ पे हम लोग इसे यूज़ करेंगे. ठीक है. अब हम देखते हैं e raised to power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है. इट इज़ सेम e raised to power x. e raised to power x का डिफरेंशिएशन इज सेम e raised to power x, एंड log x का डिफरेंशिएशन इज 1 by x. So ln x का डिफरेंशिएशन इज 1 by x, right? So just remember this. These two differentiations are quite important also. Now we have the product rule in मैथमेटिक्स, इन डिफरेंशिएशन. सो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, अगर मेरा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x माइनस 1, अगर ये फंक्शन है तो क्या होगा, एक फंक्शन मेरा ये है u, एक फंक्शन मेरा v है. तो अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करूँगा मैं. सो आई विल टेक फर्स्ट u एज अ सेम वैल्यू एंड आई डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, सो dv by dx, then I differentiate this v function, and then I keep again. So if I'm having this function, I take it u and v. So first I take u out and I differentiate v. ठीक है. Then I take v out and then I differentiate u. That is what I have done. Suppose this function is there, x square x plus 1. पहले मैंने x square को बाहर रख लिया.
इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, एक्स रेज टू पावर 1 का इस 1. नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट, नाउ सेकेंड टर्म जो इसकी होगी, इसको मैंने बाहर रख लिया x प्लस 1. नाउ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x. ठीक है, सो नाउ दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस. ओके, दैट्स हाउ द मल्टीप्लिकेशन रूल, द प्रोडक्ट रूल इज देयर. प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है कि अगर मेरा y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ जी एक्स, तो क्या करूँगा, पहले मैंने एफ एक्स को बाहर निकाल लिया, जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, प्लस फिर मैंने जी एक्स को बाहर निकाल दिया और एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दिया. दैट्स हाउ द प्रोडक्ट रूल वर्क्स. ओके, सो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग. ई रेज टू पावर लॉग एक्स. कब, तो इसमें दो फंक्शन है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है. सो हम क्या करेंगे, ई रेज टू पावर एक्स को पहले मैंने कॉमन ले लिया, डिफ्रेंशिएशन किया लॉग एक्स. लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया, क्या आया मेरा 1/x. फिर मैंने log x को कॉमन ले लिया, ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया, मेरे पास क्या आया, ई रेज टू पावर एक्स. सो दिस इज माई डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स log x. राइट, सो नाउ विल मूव ऑन टू द क्वोशंट रूल. सो क्वोशंट रूल में क्या होता है डिफ्रेंशिएशन के सपोज ये वैल्यू दे, ये फंक्शन दे रखा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3x माइनस 4. दिस इज द फंक्शन. सो क्वेश्चन रूल में ये डिवीजन में वैल्यू दे रखी है, तो ये दे रखा है आपको u बाई वी, ऐसे फंक्शन दे रखा है. ठीक है, यहाँ पे फंक्शन दे रखा था आपको u डॉट वी, यहाँ पे दे रखा है u बाई वी में फंक्शन. तो इसको कैसे करते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन, तो नीचे वाली टर्म है उसका स्क्वायर ले लेंगे पहले. ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे वाली टर्म को बाहर कॉमन रख के ऊपर वाली टर्म जो थी उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे. ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस ये जो ऊपर वाली टर्म है उसको बाहर रख के नीचे वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे. ठीक है, दिस इज द रूल ऑफ क्वोशंट. सो देखते हैं यहाँ पे. सो अगर हमारे को u बाई एक्स इस फॉर्म में दे रखा है, राइट, नाउ मैं क्या करूँगा, जो ये वाली टर्म है इसका स्क्वायर करूँगा पहले, डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर कर दिया. ठीक है, नाउ इसको मैं बाहर रखूँगा और इसका पहले डिफ्रेंशिएशन लूँगा. इसको मैंने बाहर यहाँ कॉमन रखा 3x माइनस 4. इसका मैंने ऊपर वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन किया, ऊपर वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 2. ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया 2x प्लस 2. अब मैंने इसको बाहर रखा नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म को. ठीक है, न्यूमरेटर वाली टर्म को बाहर रखा, यहाँ पे ये न्यूमरेटर वाली टर्म को बाहर रखा, और ये मैंने अब डिनोमिनेटर को यहाँ पे लॉक किया, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट किया. तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इज 3, सो आई पुट द 3. ठीक है, सो इसका स्क्वायर किया. ठीक है, इसको कॉमन लिया, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किया, ऊपर वाले डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया. सेम वे फिर इसको कॉमन रखा और फिर इसका डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन किया. दैट्स हाउ द क्वोशंट रूल अप्लाइज. That's how the quotient rule. So product rule and quotient rule will be seeing in the coming problems of physics, how this product rule and quotient rule will be used. Product rule बहुत use होगा हमारा, so we'll see how it has been used. Okay, now we'll move on to the chain rule. chain rule देखते हैं. chain rule में क्या होता है कि अगर मेरा एक फंक्शन है that is depending on, suppose x y है फंक्शन दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन x, और जो x है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन t. ठीक है, t में थोड़ा सा चेंज करूँगा, x में कितना चेंज आएगा, अगर मैं डेल्टा t चेंज करूँगा तो यहाँ पे डेल्टा x चेंज आता है, और ये डेल्टा x चेंज की वजह से मेरा y में कितना चेंज आता है, दैट इज़ डेल्टा y. सो नाउ आई वांटेड टू नो, अगर मेरा डेल्टा t में चेंज है तो ओवरऑल डेल्टा y में कितना चेंज आएगा. ठीक है, तो हाउ दिस फंक्शन आर रिलेटेड चेन रूल में, कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x और x इज़ फर्दर फंक्शन ऑफ t. ठीक है, t में चेंज x में चेंज आएगा, x में चेंज y में चेंज आएगा. तो मेरे को ओवरऑल देखना है कि t में चेंज करने से y में कितना चेंज आएगा. ठीक है, तो ये ऐसे करेंगे. सपोज दिस इज़ माय फंक्शन एंड फर्दर x इज़ अ फंक्शन ऑफ t. सो dy बाई dt मैंने किया, क्योंकि मेरे को फाइनल जो x का t का फंक्शन है जो लास्ट उसमें, सो फर्स्ट मैंने किया dx बाई dt एंड देन df बाई dt. दिस इज़ आउटसाइड, पहले मैं बाहर के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूँगा, देन जो अंदर जो x का फंक्शन है जो t पे डिपेंड है, देन आई एम गोइंग टू डिफ्रेंशिएट दैट. सो विल सी इट विद द एग्जांपल. सपोज मेरे पास एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस 4. तो यहाँ पे y इज़ अ फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन विच इज़ फर्दर ए फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4 विच इज़ फर्दर ए फंक्शन. तो पहले मैं क्या करूँगा, आउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूँगा. आउटर फंक्शन क्या है मेरा, साइन. तो पहले मैंने साइन को डिफ्रेंशिएट किया, ये वैल्यू आ गई मेरी कॉस
एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब मैंने अंदर का फंक्शन जो है पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4 उसको डिफ्रेंशिएट करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या आएगा 2x, क्योंकि ये है बस एक वेरिएबल 2x, तो मेरी टोटल वैल्यू आ गई ये, दिस इज माई डिफ्रेंशिएशन। आई विल सी अनदर फंक्शन y इज इक्वल्स टू 4 ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सो y यहाँ पे फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, विच इज़ फर्दर अ फंक्शन ऑफ पॉलिनॉमियल, विच इज़ फर्दर अ फंक्शन ऑफ पॉलिनॉमियल। इसको कैसे करूँगा मैं, अगेन पहले मैं आउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूँगा। आउटर फंक्शन इज दिस, सो ई रेज टू पावर, सपोज ई रेज टू पावर दिस फंक्शन इज व्हाट, ई रेज दिस इज 4 e raised to power x square minus 2x, that is a differentiation of outer function. now inner function क्या है मेरा, x square by x square minus 2x। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, दैट इज 2x minus 2, दैट इज माई डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। सो दिस इज़ अ चेन रूल। सो चेन रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स बीन यूज्ड इन मोस्ट ऑफ आवर फिजिक्स एप्लीकेशन, तो काफ़ी यूज़ होगा। तो इसके अंदर याद रखना है कि जब भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट है, सपोज एक फंक्शन है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन अनदर फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज़ फर्दर डिपेंडिंग ऑन अनदर फंक्शन एंड आई हैव टू फाइंड आउट dy by dt। सो व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट डिफरेंशिएट द आउटर फंक्शन जो dy by dx करूँगा, देन आई विल डिफरेंशिएट द इनर फंक्शन dx by dt, ओके राइट। सो फर्स्ट आई डिफरेंशिएट द आउटर ऑफ दिस मेन फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, और फिर उसके अंदर का फंक्शन क्या है, दिस इज इनर फंक्शन, देन आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट द इनर फंक्शन, फर्स्ट आउटर देन इनर, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अ डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन, सो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हाउ योर स्लोप इज चेंजिंग। तो इसका मतलब फील लेने के लिए है कि कर्व किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो सपोज ये एक कर्व है मेरा, यहाँ पे अगर मैं स्लोप बनाऊँ, उसका स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहा है, जीरो हुआ और फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट कर्व की जिस तरीके की फील होगी, कर्व इज शोइंग यू द डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब मैं ये कर्व लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्लोप बहुत रैपिडली डिक्रीज़ कर रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे शार्प कर्व है, शार्प कर्व का मतलब है कि उसका रेट ऑफ चेंज बहुत शार्प है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज बहुत शार्प है, दैट इज़ व्हाट द डबल डिफरेंशिएशन ज़्यादा है, दैट मीन्स द कर्व इज़ क्वाइट शार्प। अगर वो बहुत स्लो है, दैट इज़ द कर्व इज़ चेंजिंग वेरी स्लोली। अगर ये ऑलमोस्ट लाइक दिस है, तो दैट इज़ चेंजिंग वेरी स्लोली, ठीक है, वेरी स्लोली, दैट इज चेंजिंग वेरी स्लोली। सो ये कर्व का ये d2x जो इसका डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन इज़ वेरी लो। सो डबल डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू गिव यू हाउ द कर्व इज बेंडिंग। द कर्व बेंडिंग मीन्स अगर कर्व बेंड नहीं कर रहा है, फिर इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ अ जीरो कर्वेचर, ठीक है। कर्वेचर नहीं है तो d2y by dx2 इज जीरो। अगर शार्प टर्न है, एकदम से टर्न आ रहा है, सो वेरी हाई कर्वेचर है यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पुश हुआ है। सपोज एक पार्टिकल है, वो ऐसे मूव कर रहा है और सडनली जाके यहाँ पे एकदम पुश करके इधर को मूव करा दिया इसको, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत हाई लेवल ऑफ पुश किया है, तभी ये पार्टिकल को ऑलमोस्ट 180 डिग्री मूव करा दिया, ठीक है। तो ये हाई कर्वेचर है। अगर इस पार्टिकल को मेरा ऐसे स्लो मूवमेंट होता है इस पार्टिकल का, जैसे यहाँ पे बहुत शार्प है, तो दैट इज़ स्लो पुश मिल रहा है यहाँ पे इट इज़ गेटिंग अ स्लो पुश मीन्स अगर एक पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है, स्लो पुश का मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है, ठीक है। यहाँ पे जो पुश मिल रहा है इधर की साइड से कम मिल रहा है, यहाँ पे एकदम सडन पुश मिला इसको, तभी एकदम शार्प कर्वेचर बना, ठीक है। जब भी सडन पुश मिलते हैं शार्प कर्वेचर बनता है। यहाँ पे फ्लैट लाइन है, जीरो कर्वेचर। जितना स्मूथ कर्वेचर होगा उतना कम पुश मिलेगा, उतना डबल डिफरेंशिएशन उसका कम होगा, ठीक है, उतना रेट ऑफ चेंज उसका कम होगा। सो dy by dx is the slope, it is the slope which is giving you, and how this slope is changing, it is double differentiation। तो यहाँ पे मेरा स्लोप ये है नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे स्लोप कम होता है, यहाँ पे धीरे स्लोप कम होता जा रहा है, ऑलमोस्ट b पे जीरो हो गया और फिर इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। सो फ्रॉम नेगेटिव इट इज़ गोइंग डाउन टू जीरो एंड इट इज़ गोइंग डाउन टू इंक्रीजिंग डायरेक्शन, ठीक है। स्लोप पहले धीरे नेगेटिव से कम हो रहा है, देन इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज़ व्हाट this graph is showing। So that means double differentiation is increasing, so d2y by dx2 is increasing, so d2y by dx2 is increasing here। So how slope is changing from a to b, so it is giving you the curvature field। अगर यहाँ पे सेम वे में अगर ये यहाँ पे स्लोप ऐसा होता, सो
यहाँ पे कर्वेचर का जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज़ क्वाइट लो, सो d2y/dx2 इज स्लो। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा पुश मिल रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तभी ये अपनी डायरेक्शन चेंज रैपिडली कर रहा है। अगर इसको कम पुश मिलेगा यहाँ से, तो ये कम पुश मिलेगा तो ये स्लोली अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, स्लोप इज रेट ऑफ स्लोप, कितना फास्ट मूव कर रहा है, दैट शोज द बेंड इन कर्वेचर एंड दैट इज हाउ मच टर्निंग इज हैपनिंग इन द कर्वेचर। ठीक है, सो डबल डिफरेंशिएशन इज गिविंग यू अ फील ऑफ अ कर्व। अगर कर्व स्मूथ है, बहुत स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स कोई डबल डिफरेंशिएशन नहीं है, उसकी ज़ीरो है। अगर कर्व एकदम से शार्प मूव कर रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे बहुत हाई लेवल ऑफ रेट ऑफ चेंज हुआ है, दैट मीन्स वहाँ पे कुछ हाई लेवल ऑफ पुश मिला है, लाइक काइंड ऑफ इम्पल्स मिला है, जर्क मिला है वहाँ पे, सो दैट्स वाई इट सडन चेंज आया। अगर वो स्मूथ धीरे धीरे चेंज कर रहा है, दैट इज़ अ स्मॉल धीरे धीरे कॉन्स्टेंट पुश मिल रहा है उसको। ठीक है, दिस सेट ऑफ ग्राफ वी आर गोइंग टू सी इन आर कमिंग लेक्चर्स इन काइनेमेटिक 2D। अगर आप देखोगे तो पैराबोला में भी देखोगे, पैराबोला इज गोज लाइक दिस। तो ये कर्वेचर है ना पैराबोला का, तो यहाँ पे एक सडन पुश इसको नीचे मिलता रहता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो जो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है इसको सडन पुश मिल रहा है थ्रू द ग्रेविटी, दैट शोज द कर्वेचर। अगर मैं जी की वैल्यू इसकी बढ़ा दूँ तो ये ऐसे गिर जाएगा और जल्दी गिर जाएगा। ठीक है, अगर मैं जी की वैल्यू गिरा, तो अगर मैं जी की वैल्यू और कम कर दूँ तो इसका कर्व जो है बहुत धीरे काफ़ी बार जाके गिरेगा। ठीक है, जी की वैल्यू मतलब उसका एक्सेलरेशन में बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ। ठीक है, दैट्स हाउ द कर्वेचर इज डिपेंडिंग इज बीन रिलेटेड विद द डबल डिफरेंशिएशन। So now here again we are going to see how the curve is bending. So suppose this is your position and time graph. These two are position and time graph. तो यहाँ पे if I see the slope, position time graph का slope क्या दिखा देता है, so position time graph है, so उसको dx/dt अगर मैं करूँगा that is going to give me the velocity. So position time graph is giving me the velocity and d2x/dt2 is dv/dt. It is giving me the acceleration कि कितना पुश मिल रहा है। ठीक है, it is giving me the acceleration. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ गिविंग मी द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अगर dx/dt का जो स्लोप देखूँगा मैं, यहाँ पे स्लोप इसका धीरे धीरे इट इज़ डिक्रीजिंग, इट इज़ गोइंग डाउन टू जीरो एंड देन इट इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इधर की साइड से पुश मिल रहा है, सो सम एक्सेलरेशन और सम पुश इज़ देयर फ्रॉम दिस साइड, दैट्स वाई इट इज़ चेंजिंग द डायरेक्शन and that's why it is changing that its velocity is getting zero first and then it is changing direction. So it's velocity, so you can see it here. Suppose in this like motion कैसा होगा इस पार्टिकल का, suppose इस मोशन पार्टिकल जीरो से स्टार्ट किया, so इसकी यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस पॉइंट पे velocity is negative. Velocity negative means अगर मैं it is a 2-dimensional motion, अगर velocity इधर की साइड में पॉजिटिव ले रहा हूँ, इधर की साइड में मैं नेगेटिव velocity लेता हूँ, तो पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, नेगेटिव साइड, दिस इज नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी उसकी और एक्सेलरेशन क्या है मेरी, दिस अबव साइड, पॉजिटिव साइड, तभी इसको पुश कर रहा है। एक्सेलरेशन इज अबव साइड, एक्सेलरेशन इज दिस साइड। सो मोशन कैसे होगा कि वेलोसिटी मेरी इस साइड है, एक्सेलरेशन इस साइड है, पार्टिकल रिटार्ड होगा धीरे धीरे एक पोजीशन पे आकर जीरो वेलोसिटी हो जाएगी, और फिर वेलोसिटी जीरो है बट स्टिल एट दिस पॉइंट एक्सेलरेशन इज देयर, तो पार्टिकल को स्टिल it is going to keep on moving and it is going to increase the velocity this side. So धीरे धीरे velocity zero हुई, फिर धीरे धीरे on the above side the velocities keep on increasing. So that's the motion of the particle in this curve. अगर मेरा position time graph इस तरीके का है, तो यहाँ पे क्या है मेरी velocity is my positive but it is decreasing and it goes to zero and then it is increasing on the other side. Now इस particle का motion देखूँगा तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी इस साइड है बट एक्सेलरेशन मेरा इस साइड है, तो यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन ये साइड लग रहा है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पैराबोला प्रोजेक्टाइल के माई एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज दिस साइड, सो इट इज़ पुशिंग द मोशन फ्रॉम द टॉप, it is pushing the motion from the top, if we'll see in the projectile. But here if you see the motion in this way, यहाँ से मेरा मोशन स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव साइड में मैंने इनिशियल वेलोसिटी है v बट एक्सेलरेशन इज इन दिस साइड, सो पार्टिकल विल स्टार्ट डी एक्सेलरेटिंग। एक पोजीशन पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी इस पोजीशन पे, और यहाँ से फिर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बट एक्सेलरेशन इज स्टिल ऑन द लेफ्ट साइड, सो इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग ऑन दिस डायरेक्शन. सो इफ यू सी दिस ग्राफ, सो पहले दिस ग्राफ इट इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज, इट इज़ गोइंग अप टू दिस लेवल जहाँ पे v जीरो हो जाएगा, फिर वापस आके सेम x के लेवल पे आ जाएगा, इट इज़ गोइंग टू दिस लेवल, दिस x की वैल्यू जो कि मेरी यहाँ पे जो x की वैल्यू सेम है, एंड देन इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द अपोजिट x डायरेक्शन.
right? It is going to increase in the opposite x direction. So that's how this position time graph, it's been related with double differentiation. डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपको बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किस तरीके से हो रही है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स कि यहाँ पे नीचे से पुश मिल रहा है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इट इज़ डिक्रीजिंग, गोज डाउन टू जीरो, इंक्रीजिंग, और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे भी, यहाँ पे पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग है, गोज डाउन टू जीरो एंड देन इंक्रीजिंग ऑन द अपोजिट साइड. सो दैट्स हाउ द कर्व इज बेंडिंग हियर. सो अगर मोर है ए है, अगर यहाँ पे मेरी आपको पुश ज़्यादा की साइड में हो जाएगा, अगर ज़्यादा पुश होगा तो यहाँ पे बेंड और शार्प होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो मोर ए है, अगर यहाँ पे ए की वैल्यू मेरी यहाँ पे ज़्यादा है तो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू पुश मोर, इट इज़ गोइंग टू गेट मोर बेंड दिस साइड. अगर यहाँ पे ए की वैल्यू कम है, इट इज़ गोइंग टू गो डाउन एंड इट इज़ गोइंग टू मेक द कर्व लाइक दिस. अगर ए की वैल्यू मेरी और कम हो जाए, इट इज़ गोइंग टू गो लाइक दिस, और ए की वैल्यू मेरी और बढ़ जाए तो इट इज़ गोइंग टू गो लाइक दिस. सो और ज़्यादा जल्दी से पुश हो जाएगा ये इधर. ठीक है, clear? So how curves are and double differentiation has been related. Now we'll move down to our last topic. It is maxima and minima value for this lecture. Next lecture में हम लोग integration देखेंगे और we are going to see certain questions on calculus. So this is the last topic for today's. It is maxima and minimum values. So I know curve है, curve is moving like this. Suppose this is my x position and time curve. So it is moving like this. So यहाँ पे इसकी velocity complicated बन गया थोड़ा. Let's take an easy curve. So अगर मैं x और t कर्व को देखूँ, x और पोजिशन और टाइम के कर्व को, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसकी वेलोसिटी ये है, यहाँ पे देखूँ वेलोसिटी स्लोप कम हो रहा है, यहाँ पे देखूँ वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो हो रही है, यहाँ पे then again it is going to increase, then again it is going to get decreasing. So suppose यहाँ पे इसको push, suppose ऊपर की साइड से push मिल रहा है, यहाँ पे इसको push नीचे की साइड से मिल रहा है. ठीक है, तो ऊपर से की साइड से पुश मिल रहा है तो वेलोसिटी एक लेवल पे जाके जीरो हो गई, फिर अपोजिट साइड में इंक्रीज में मिलने लगी, फिर जैसे जैसे इंक्रीज होते गई इसको यहाँ से पुश मिलने लगा अपोजिट साइड से, देन इसकी वेलोसिटी एक पॉइंट पे जीरो हो गई, देन अपोजिट साइड में इंक्रीज होनी शुरू हो गई. नाउ आई हैव टू सी कि इस कर्व में मेरी, इस कर्व में मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है. मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होती है, इसकी मिनिमम कंडीशन क्या है कि द कर्व बेंड फ्रॉम दैट पोजीशन, द वेलोसिटी एट दैट पोजीशन गेट जीरो, द स्लोप ऑफ द कर्व विल गेट जीरो एट दैट पॉइंट. सो पहले मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है कि वी डोंट नो वेदर इट इज़ अ मिनिमम और मैक्सिमम, बट इफ़ यू सी दिस कर्व में जिस पॉइंट पे मेरा स्लोप जीरो हो जाएगा दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा. ठीक है, सो इस कर्व में यहाँ पे एंड यहाँ पे, दैट मीन्स इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है. ये अगर मेरा एक्स एंड टी कर्व है, स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी, सो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, देन वेलोसिटी इज अपोजिट साइड पे इंक्रीज होकर फिर यहाँ पे जीरो हो रही है, फिर सो इट्स कर्व इज लाइक दिस पार्टिकल इज लाइक ऑसिलेटिंग लाइक दिस, दिस पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस. ओके, so first condition for my maximum minimum is dy by dx is equals to 0. That is first we are going to use it. Then second thing we are going to see कि how the rate of curve is change is happening, क्योंकि दोनों जगह rate of change of curve, rate of change of slope is different, not the curve, rate of change of slope is different. यहाँ पे मेरा slope पॉजिटिव है, ज़ीरो है, नेगेटिव, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो d2y by dx, तो स्लोप मेरा डिक्रीज कर रहा है, इट इज़ लेस देन ज़ीरो. ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरा, दिस पॉइंट पे नेगेटिव है, पॉजिटिव हुआ, और फिर नेगेटिव है, ज़ीरो हुआ, फिर पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो d2y by dx2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. सो फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम, सो अगर ये दो सिचुएशन में देखूँ, दोनों जगह मेरा dy by dx ज़ीरो है. फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा माई स्लोप शुड बी डिक्रीजिंग, स्लोप मेरा डिक्रीज करना चाहिए, स्लोप मेरा ऐसे जाना चाहिए. दिस इज़ माई कंडीशन ऑफ मैक्सिमा. सो स्लोप मेरा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पे ज़ीरो हो गया, फिर अपोजिट साइड में इंक्रीज होना शुरू हो गया. सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. और अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा देखना है तो स्लोप मेरा धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है एंड देन डिक्रीज कर रहा है. सो द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा इज इफ d2y by dx2 is less than 0, that means the change in slope is decreasing, that means it is a maxima, and if the change in slope is increasing, it is a point of minima. ठीक है, the change in slope is increasing, negative, 0, positive, positive, 0, negative, so change in slope is decreasing, so this point is maximum. So maximum minimum check इस तरीके से करते हैं हम लोग. फर्स्ट थिंग इज कोई भी कर्व हमारा दे रखा है,
सो ये कर्व दे रखा है. सो टू चेक द मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट वी हैव टू चेक डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ पे जीरो है. सो दीज आर द डी वाई बाई डी एक्स जीरो. ठीक है, जहाँ पे कर्व का स्लोप जीरो हो रहा है दैट इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम. अब फिर आई हैव टू चेक डबल डेरिवेटिव d2x d2y by dx2. दैट आई चेक द डबल डेरिवेटिव. अगर डबल डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो है दैट मीन्स द स्लोप इज डिक्रीजिंग, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है दैट मीन्स स्लोप इज इंक्रीजिंग. ये वाला पॉइंट स्लोप इज इंक्रीजिंग, दैट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा. ओके, so that's how maxima and minima we calculate. So we'll see one question on maxima and minima and then we'll wrap up for this lecture. We'll take a quick review of this lecture and from this onwards we are going to do it in the lecture number 4. Integration we are going to do it in lecture number 4 along with some calculus based questions, physics application based questions that we are going to see in the lecture. सो अगर मेरा फंक्शन है पोजिशन इज रिलेटेड विद टाइम लाइक दिस एक्स इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 3, दैट इज हाउ माई पोजिशन इज वेरिंग विद t. सो नाउ आई टेक द स्लोप ऑफ इट. स्लोप ऑफ इट इज नाउ सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन चेक करने के लिए क्या होता है, आई चेक द स्लोप फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स पर डिफ्रेंसिएशन करता हूँ. आई चेक द स्लोप, आई पुट इट जीरो एंड आई फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, वो किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है. ठीक है, तो वही करूँगा मैं. डी एक्स बाई डी टी मैंने किया यहाँ पे, इसका यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी मैंने किया, इसका क्या आ गया 10t, इसका -9. अब मैंने इसको डी एक्स बाई डी टी को जीरो कर दिया बिकॉज स्लोप इज जीरो एट मैक्सिमम मिनिमा. सो टी की वैल्यू आ गई मेरी 9/10. ठीक है, नाउ आई डू डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस अगेन. This again I'll do the one differentiation or for this double differentiation, so I'll get 10 is what, greater than 0. That means the slope is increasing. Slope is greater than 0, that means slope is increasing. So this point is point of minima, so slope is increasing. So this way slope is increasing, this way slope is decreasing. So this is a point of minima. Got it? So that's how we see point of minima and point of maxima. So this point of minima and point of maxima, it's been used in equilibrium cases where we'll see the stable equilibrium and unstable equilibrium. So in those cases we see the point of maximum and minimum. So we'll use this in the coming lectures. So I think this is for today. I hope you people have got it. So I'll just give you a quick review कि आज हमने क्या क्या किया. So आज हमने देखा कि सबसे पहले what is calculus. कैलकुलस में हमने देखा कैलकुलस इज़ अ लैंग्वेज ऑफ चेंज. किस तरीके से हम लोग चेंज को मॉनिटर करते हैं. सो चेंज कैन बी ऑन ए लार्जर स्केल और चेंज कैन बी ऑन ए स्मॉलर स्केल. इफ़ यू लार्जर स्केल पे चेंज दिख जाता है, बट इफ़ यू हैव टू गो ऑन ए स्मॉलर स्केल वी नीड कैलकुलस टू डू द मैथमेटिक्स ऑफ दैट. सो कैलकुलस इज़ नथिंग बट जूमिंग इन टू योर फंक्शन and just checking के at particular instant how the rate of that function is changing, और उस change of function को अगर मैं हर point पे accumulate करता जाऊँ and that is going to give me the integration. ठीक है, फिर हमने देखा function is nothing but it's kind of a block. यहाँ पे मैं input डालता हूँ, output और function change करके वो मेरे को output देता है. So here अगर sin is a trigonometric function, अगर मैं x की वैल्यू डालता हूँ input में, y की वैल्यू I get it as a output. Then we have seen the differentiation. We have seen the limit. What are the limits? We have seen the Achilles and the tortoise paradox, and then we have seen the halfway paradox. Okay, how with the infinite steps also we could not able to reach the final value. That is what we have seen in limit. We are approaching 0, but we have not reached 0. That's what we have seen. Then we have seen the limits. How we calculate the limits? It is like approaching to the function, not the exact value of the function at that point. Then we have seen the derivative, how we have what is the derivative shows, what is the differentiation shows in terms of in mathematics. So this is a average rate of change, and instantaneous rate of change is what give me the derivative of a function. Instantaneous means right now change, and instantaneous rate of change of a function or a curve, it's the tangent of that point. That is what we got it from the instantaneous rate of change. We have seen the instantaneous rate of change. We have seen it we'll see it in instantaneous velocity and instantaneous acceleration, because average acceleration and average velocity does not give us the complete picture of motion. So
only instantaneous or the right now or the instantaneous things is going to give us the exact picture of our motion. So there again the differentiation has been required. Then we have seen certain properties and certain derivatives के certain functions का derivation देखा हमने कि how we do the derivation. So we have seen the derivation of x raised to power n sin x cos x. We have seen certain examples. We have seen tan x, ex and ln x. And we have seen ex और ln x अगर हम function apply करते हैं किसी input पे तो वो क्या करता है, this function will amplify, this function will reduce down the larger to small. Then we have seen the product rule, how the product rule has been working. This is the way. Then we have seen the quotient rule. So we have done certain question on this. Then we have seen the chain rule. If one function is depending on the other and the other is depending on further another, that we have seen this. Then we have seen the double differentiation. That is the how to the curvature feel कि curve किस तरीके से how the curvature has been building up. So curvature किस तरीके से bend हो रहा है. That is what we have seen in double differentiation. Then we have seen the values of maxima minima, किस point पे value maximum होती है, किस point पे value minimum होती है. That what we have seen, and we have seen how we mathematically calculate that. Okay, so this is the end of today's lecture, lecture number 3. So अब लोग हम lecture number 4 में मिलेंगे, where we are going to study more on the calculus, that is integration. Okay, all right, thank you.